Everyone, welcome to e-learning online channel. Please subscribe, like. This is very second video. Okay, today we are going to do question number 4. Given that the PF4 prime factorization of 9801 is this, find this. Okay, without using calculator. Students, you are not allowed to use calculator. You have to do multiplication here. Okay. I will just put this in the form of square root because this is equivalent to this. Okay, this is in the form of index notation as we already did in the previous video. There's index notation by making its factors. Okay, if you make its factors like this, like we did in the first video. Okay, so you can just make it like this. I will put on square root over it. We have imaginary 2 over here, so you will write it like this. Under root is equivalent, square root is equivalent to 1 by 2 power. So it will be cutted from here and 2 2s are 4. This will be like this. 3 square into 11 exponent 1. 3 square means 3 into 3 into 11. 3 3s are 9, 9 11s are 99. This is your answer. Okay. This is how you will solve. Let's move to question 21952. इसकी इंडेक्स नोटेशन जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, डैट इज 2 raised to power 6 into 7 raised to power 3. Okay, we have to find its cube root. First we did its square root and now we are going to do its cube root. So you will simply apply cube root on it. Okay, as we know that when we are going to do cube root and we have 1 by 3 power of this. Okay, as its cube root, not square. So we will simply write it like this and its power would be like this 1 by 3. अब हम इसका ये जो ब्रैकेट है स्टूडेंट्स को हम ओपन करेंगे. तो इसको ओपन करेंगे तो इसकी एक्सपोनेंट्स जो है वो एक्सपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी like this, and then second number and it would be multiplied like this. So ये मल्टीप्लाई डिवाइड में इनकी कटिंग हो जाएगी. 3 1s are 3 and 3 1s are 3. Here 3 1s are 3 and 3 2s are 6. हमारे पास क्या बच गया पीछे? What is left? 2 raised to power 2 into 7 raised to power 1. इधर से तो 1 बच गया था ना, 3 into 3 कट हो गए थे. 2 raised to power 2 means 2 का स्क्वायर करें, इट मीन्स 2 into 2. 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे बेस से और मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 1. मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2s are 4, 4 7s are 28. So 28 is your answer. This is how you solve. Now we are going to move on towards question number 6, that is estimate the value of this. Okay, we have under root 66. So how we are going to solve it? हम ये देखेंगे कि 66 जो है इसकी अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये किसके नियरेस्ट है. दिस इज साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन. ओके, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है. तो ये 64 के मतलब नियरेस्ट फॉल कर रहा है. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि 64 का हम लोग देख लेंगे क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है एंड 66 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो हम इसकी वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. तो हमने देखा कि इसके नियरेस्ट क्या है. ये अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट है 64 के, और 64 का हमें पता है कि वो होता है 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 8s are 64. तो इसको हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया और फिर अगर आप 8 का स्क्वायर कर दें तो इधर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा. We have done A part, now we are on part number B. Sorry, it's part number C. Okay, part number B same as we did about A. So I'm just gonna move on C. Here we are going to solve its cube root. Okay, 218 cube root. अब 218 जो है वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं होता स्टूडेंट्स. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 218 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके नियरेस्ट है. तो अप्रॉक्सीमेशन का साइन अगेन हम यूज़ करेंगे एंड देन वी विल राइट इट. ये नियरेस्ट है 216 के, क्योंकि 216 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब होता है. अच्छा, वो किसका क्यूब होता है? 6 into 6 into 6. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 times 6 को, देन यू विल गेट व्हाट? 216. ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस. 6 का क्यूब आप कर लेंगे इधर क्यूब, और आपको पता है कि क्यूब रूट से ये पावर सिंपली इससे कट हो जाएगी. सो योर आंसर इज 6. ओके, ये 218 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आ गया आपका? 6 के. ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन. Question number 7. Question number 7, I'm not gonna solve that on the board because that is directly solved through calculator. Okay students, आप लोग सिंपल जो question number 7 है उसको कैलकुलेटर में एंटर करेंगे
और उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, उसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस या कोई लेंथी वर्किंग नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया एंड आई एम जस्ट गोना जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज़ इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल जो है एक एडवांस लेवल है और इसको मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इसको स्किप कर देते हैं, वो कहते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल से मतलब लाइक क्या करना है। बट इंटरमीडिएट लेवल जो है दीज क्वेश्चंस आर मोस्टली इंक्लूडेड इन एग्जाम्स एज वेल। आपकी टीचर्स आउट ऑफ सिलेबस जाके जिसको आप कहते हैं क्वेश्चंस आए हैं दैट इज़ from intermediate level or advanced level, so kindly focus on it. Here we have question number 8. Question statement is very lengthy, I am not gonna write it. मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज़ 250 cm स्क्वायर। एक आपके पास फोटो फ्रेम है जिसकी शेप क्या है, ये है आपके पास एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, और इसका एरिया जो है टोटल वो क्या है 250 cm स्क्वायर है। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर इज डिनोटेड थ्रू सिंबल पी, ओके, जिसको आपने फाइंड करना होता है उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। एरिया का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्विवेलेंट टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एल इनटू एल, ओके। लेंथ ऑफ साइड हमें मिलेगी तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, बिकॉज पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज इसकी 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की, 1 2 3 4, ओके। आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल्स टू ये जो 250 है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 15.8 cm आ गई। इट मीन्स दिस इज लेंथ ऑफ वन साइड, सो यू विल सिंपली पुट इट हेयर। लेंथ की वैल्यू आपने इधर डाली और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि इसकी 4 साइड्स थी, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास 63.2 cm ये आपके पास सेंटीमीटर्स में आंसर आ गया, दैट इज़ योर पेरीमीटर, ओके।